और अभी अगर हमें पता लग रहा है कि फखर को अपना रोल नहीं पता, बाबर को अपना रोल नहीं पता, रिजवान, तो दिस इज नॉट ऑन। फखर को पता है कि नंबर 4 का बैट्समैन है, उसने नंबर 4 पे ही बैटिंग करनी है और उसने उसी के मुताबिक क्रिकेट खेलनी है, शार्ट कोई भी खेले। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर कुछ लोगों के रोल नहीं डिफाइन और कुछ लोगों को खामखा लिंगर ऑन किया जा रहा है, कुछ लोगों को खामखा अपने साथ रखने की कोशिश की जा रही है। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी जल्दी कुछ टीमें कर लेंगी। ये जो माइलस्टोन है ना, 50, 100, 5 आउट, ये बहुत जल्दी क्रिकेट से बाहर होने वाले हैं और ये होगा, क्योंकि अब दुनिया जो है वो टीम विन की तरफ जा रही है। वो आपके 100 या 50 का इंतजार नहीं करती, वो आपकी एवरेज के पीछे नहीं जाते, वो आपके 5 आउट देखने के लिए नहीं आते। हम क्यों हैं पाकिस्तान के फैन, या पाकिस्तान की क्रिकेट का क्यों सारे फैन है? क्योंकि पाकिस्तान जीते। वो मेरे लिए नहीं आते, वो यूनुस खान के लिए नहीं आए, वो शुएब अख्तर के लिए नहीं आए, वो आए पाकिस्तान जीते, और इसीलिए वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो ये जो पर्सनल माइलस्टोन की बातें हैं ना, इसको बहुत जल्दी फाड़ के कहीं कूड़े की रद्दी के अंदर जो है ना उसको फेंक दिया जाए, क्योंकि ये क्रिकेट के अंदर ज़्यादा देर तक टिकने वाली चीज़ नहीं है। अब वो दौर आ गया, जैसे इनोवेट हो रही हैं चीज़ें, जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है क्रिकेट, ये जो पर्सनल माइलस्टोन है ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। ये मुझे ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो कि शुएब भाई इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप मैच ही नहीं जीत सकते ना यार, अगर आप मैच ही नहीं जिता सकते ना तो क्या है? अगर फीस अगर नहीं मैच जिता सकता, यूनुस नहीं जिता सकता, मैं एक पर्सन नहीं कर रहा बात, लेकिन तो फायदा नहीं है। चलें यहाँ पे थोड़ा ब्रीदर लेते हैं, बिकॉज थोड़ी टेंस सिचुएशन जो है वो इस वक्त बनी हुई है, बट आई एम श्योर आप सब भी यही फील कर रहे होंगे। Pose the question now that we were pondering in our pre-match: do we have our top 3 in the right order, or what would you do moving forward against the big match against India? Like, there's no time to figure this out. We have to get it right and get it right fast. No, look, they made this decision a match before playing in England that Rizwan and Babar has to open once again. I think this was not the right decision, because I still feel someone as a opener has to take that role with Rizwan, and Babar has to play at number 3, because he give you a lot of stability as a middle order batsman who can rotate the strike very well. And we have seen that as a opener, I'm not saying he's not a good player, he's absolutely a fantastic player, but when he bats at number 3, he has more average, he has more better strike rate, and he is the best player of Pakistan. So the top 4 can be sorted if he bats at number 3. Bringing a youngster, Usman Khan, as the number 3 batsman, you asking too much from him in these pressure games. And then obviously Azam Khan, we all know he's not performing well with his bat. A lot of pressure he's been going through social media campaigns, and some of the the angry fans basically saying too much on his, like, they body shaming him. I don't think so this is the right way to move on. But whatever it is, but Babar, I didn't like the way he batted. Must be too many over thoughts he has in his mind, because the way he batted, it's not the Babar Azam we all know. Some of the balls which basically a trademark shot of Babar Azam, but he couldn't manage it. So he was so under pressure, and I understand, because I've been through with this as a captain of the Pakistan team, that sometime when you take too many pressures in your head, you don't perform according to your potential. So I personally feel Babar Azam has to think about it, that still he wants to go with Rizwan as a opener, or he has to give Saim Ayub as a batsman who can give you a good start. Yes, in the last couple of matches, like in the last 10 matches, if he's been given chances, he couldn't continue playing any big shot, but he can give you impact role. The way he plays, he can give you a quick start along with Rizwan, and then Babar can control everything, and number 4 would be Fakhar. If I would be the one, I would take Saim as an opener, Babar as number 3, Fakhar as number 4. Shadab can only bat, like, at the moment mentally he's not a 4-over bowler to me. Okay. He can bat number 5, and then he's a gun fielder, and if required we can go with him 1 or 2 or 3 overs, it depends on the game situation. But we need to have a proper spinner in our side. Shadab cannot take a pressure of a spinner in the side who can give you wickets especially in the middle phase. So he's struggling. So we need to understand, we need to make a balance right, and we need to take some very bold decisions. Continuing with that point that Hafiz just made about having that spinner, of course जब आप मैच हारते हैं बहुत सारे what ifs, बहुत सारे सवाल आते हैं माइंड में। इमाद वसीम अगर आज फिट होते फॉर दिस मैच, अगर वो इस प्लेइंग 11 में होते, यूनुस क्या इम्पैक्ट वो क्रिएट करते विद हिज स्पिन, बिकॉज वी नो के यूएसए स्टार्टेड ऑफ विद दैट प्रेशर
और केंजिंगे का जो स्पेल था उसके ऊपर भी आप थोड़ा अपना ओपिनियन दें कि अगर इमाद आज होते वुड इट हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी? पहले मैं बता दूं, चाचा हमेशा चाचा ही रहेगा, फूफी नहीं बन सकती। तो इमाद नहीं है तो उसकी बात ही क्यों करनी यार, ही इज इंजर्ड, ही कुडंट प्ले दिस गेम। अगर वो होते, बिकॉज यू सेड कि एक वॉइड है पाकिस्तान में स्पिनर्स का, क्योंकि यूनुस भी बार बार यही बात कर रहे हैं कि जिस तरह यूएस ने प्रेशर क्रिएट किया विद द स्पिन, पाकिस्तान कुडंट डू दैट। बिल्कुल, देखिए हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि शादाब खान का क्या रोल है, इमाद वसीम का क्या रोल होना चाहिए, या इब्रार हैं तो उनका क्या रोल है। देखो, आपको मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि आज तो देखिए टॉप के फास्ट बॉलर, 4 फास्ट बॉलर खिला दिए ना, इससे अच्छी फास्ट बॉलिंग अटैक शोएब भाई तो नहीं हो सकती। शोएब भाई रह गए, इनको भी भिजवा देते तो शायद, तो एक शोएब भाई रह गए थे तो इससे अच्छी फास्ट बॉलिंग आज नहीं हो सकती थी। अच्छा, अब अगर ये फास्ट बॉलिंग भी, मैं तो स्पिनर पे आता ही नहीं हूँ, अगर आपके पास आपके प्रीमियम जो है 4 फास्ट बॉलर हों और इतनी क्वालिटी वाले 4 फास्ट बॉलर हों, तो मेरे ख्याल से 140 रन बहुत हैं, इनको डिफेंड करना चाहिए। आपको 5 में तो आने नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखें, लेकिन अब हमने देखा है कि अब जो इनकी क्वालिटी गिरी नहीं है इन फास्ट बॉलर्स की, बल्कि जो ओपोनेंट बैटर्स हैं ना, वो बहुत आगे चले गए हैं, टीमें बहुत आगे चली गई हैं, वो कैच भी अच्छा कर रहे हैं, उनको कैप्टन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद विद इन द टीम हर जो एक प्लेयर है वो खुद लीडर है, उसको पता है कि फील्ड पोजीशन में कहाँ खड़ा होना है, मुझे बॉलिंग कैसे करनी है, वो कैप्टन की तरफ नहीं देख रहे। तो कैप्टन के लिए बड़ा आसानी है उस वक्त। अगर मैं बाकी कैप्टन्स को देख लूँ तो उनको तो कोई मसला ही नहीं होता, वो आते हैं अपना गेम खेलते हैं। हमारा कैप्टन हम परेशान होकर खड़ा होता है कि भाई वो चीख भी रहे, पावर प्ले में अगर बॉलिंग हो रही तो आमिर चीख भी रहे हैं वहाँ पे, और बाबर भी बार बार चीख रहे हैं कि क्या कर रहे हो क्या। तो ये मेरे ख्याल से कैप्टन जब इस तरह रिएक्ट करेंगे तो वो अपने ना उनसे अपनी बैटिंग हो पाएगी। अब अगर हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं तो भाई ऐसे ही होना है फिर। तो मेक श्योर करें कि आप अच्छी एक टीम ऑर्डर बनाएं जिसमें आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों, आपके पास प्रॉपर बॉलर्स हों जिनको पता है कि मैंने सिर्फ, अगर इमाद वसीम को भी आप खिलाएं और इनको एज आप ये बोलेंगे जी ये ऑलराउंडर खेलेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मेरा फिर ये बार बार क्वेश्चन ये है कि 20 ओवर में आपको कितनी बैटिंग की ज़रूरत है? 4 या 5 बैटर बहुत नहीं है। हमने तो बाकी टीमों को देखा है कि रोहित शर्मा ने पिछले मैच में, रोहित शर्मा ने क्या वेट किया है कि बाकी जो उनके ऑलराउंडर्स आएंगे या हार्दिक पांड्या के मैच जितानेंगे वो आए, और उन्होंने एक मुश्किल पिच पे उन्होंने आपको खेल के दिखा दिया। तो मेरे ख्याल से देखिए 4 से 5 बैटर आपके पास बहुत हैं। उसके बाद ठीक है, अगर आपके पास अगर 3 से 4 फास्ट बॉलर है, लेकिन आपके पास वो स्पिनर ऐसा हो जो कि कम अज़ कम, जैसे कंजीने ने आउट करके दिए है ना, टॉप किया उन्होंने आउट करके दिया, और जिस तरह का हमारे पास वो क्वालिटी स्पिनर होना है जो हमें हमें सिर्फ 4 ओवर नहीं करके दें कि हम 2 ओवर शादाब से करा देंगे, 3 ओवर इमाद वसीम से करा देंगे, नहीं, 2 आउट करके दें शादाब खान, 3 आउट करके दे इमाद वसीम, तब जीतेंगे। दे रहा ना शादाब खान, तो इब्रार अहमद को खिलाएं। मैं इसी पे आ रही थी कि इब्रार अहमद को हमने लास्ट ईयर, इब्रार अहमद को क्या हमने इंडिया के खिलाफ खिलाना है? हमने इंडिया की सैर कराई, इस बार हम उनको यूएसए की सैर कराएंगे, कैरेबियन की, और फिर हम उन्हें कहेंगे वापस आ जाए। शोएब भाई ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि हम जीतते क्यों नहीं है? हम जीतते इसलिए नहीं कि हम वेल प्रिपेयर नहीं है ना बिग गेम्स के लिए। अब क्या आप इब्रार अहमद को क्या न्यूयॉर्क में खिलाएंगे, अगेंस्ट इंडिया खिलाएंगे? तो ऐसा नहीं है। आपको बोल्ड डिसीजन, जैसे हफीज़ ने कहा कि बोल्ड डिसीजन लेने हैं आपको, और सही राइट टाइम पे लेने हैं। अब ये ना हो कि वो बेचारा फिर आखिरी, और वो जब आखिरी मैच खेलेंगे इब्रार अहमद और उसमें उनको कोई विकेट्स नहीं मिलेगी और कोई परफॉर्म नहीं करे तो क्या होगा? अगली सीरीज से वही बाहर हो जाएंगे। तो भाई फिर इतने अरसे से रखा क्यों था? तो ये आपके पास एक मास्टरमाइंड होना चाहिए टीम में। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि सपोर्टिव स्टाफ हो, आपके बाबर आजम भी मास्टरमाइंड हो सकते हैं, वो स्किन से बाहर निकलें और टीम के फादर फिगर बने। जब तक वो ये इस इंटेंशन से नहीं जाएंगे कि मुझे सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस नहीं बल्कि मुझे हर प्लेयर के लिए जो प्लेइंग 11 है, इंक्लूडिंग और जो 2-4 लड़के बाहर बैठे हैं, उनके लिए भी प्लान्स बनाने हैं और उनकी एग्जीक्यूशन करनी है। वो ये नहीं समझे कि यार ये मेरा रोल नहीं है, ये हम सबका रोल है। और ख़ास तौर पर जितने भी 4-5 हमेशा से टीमों में यही होता है। अगर हम बाकी टीमों की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम 1 से लेकर 11 तक की बात करते हैं तो वो सारे लीडर्स हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कैप्टन है, कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन परफॉर्म नहीं कर रहा है। वो आगे आते हैं और वो अपने चेस्ट पे लेते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये थोड़ी सी कमी है। अगर ये हो जाएगा तो हम इंडिया को भी हरा सकते हैं। एक बात तो फॉर श्योर है कि अब हम डू एंड डाई सिचुएशन पे आ गए, तो मुझे लगता है अब हम अच्छा करेंगे आगे।